Last time, when I talked about leadership on 26th of January, so the topic was integrity. So, integrity is basically consistency between word and deed. So, it was basically thriving on the five pillars of living your value, honesty and transparency, ability to make tough decisions, owning up to mistakes, and leading by example. So, as I had mentioned that time also, that this is a very important moral principle which the leader has to display. Without this moral authority, the followers will not follow. And if they are forced to follow because of economic realities or because of helplessness or because of no other choice, they will not follow you from their heart. So obviously your efficiency as a team leader will go down, your team's performance will go down, and your response in the times of crisis, your response, indirectly your team's response will be much reduced and ineffective. So today the topic that I am going to talk about or delve into is endurance. Endurance in the realm of leadership is not basically about running a marathon. It is more towards character. It is more towards mental stamina. It is more towards dealing with the challenges and setbacks and heartbreaks, and when you feel that your world is falling apart, and that is the time when you have to showcase your endurance so that you can get over this problem. Again, I will request my followers, do not disturb the flow of the discussion in the live Insta with frivolous questions about army ki bharti or physical fitness and this kind of a thing. Please message me directly, one-to-one. I respond to all messages. I receive all messages. I give answer to all messages. Do not feel shy. You have the link with me. You are the person who can give a message to me on Insta any time of the day. Do not worry on that account, but I will not be able to answer individual questions not related to today's topic. So kindly understand this. So the point is, when you are leading a team or you are in a leadership position, there will be challenges. The challenges will be manifold and they will be different in different professions, different in different times, and different in different areas. So you may have fund crunch, you may have demand crunch, you may have some kind of statutory compliance problems, you may have team members leaving, you may have the pressure not able to deliver, you may have a breakdown, you may have a fire in the factory, you may have a death in the family, you may have any such things. The banks may create problems for you, or there may be no credit available, or there may be any number of things can be there. It could be threatening your business, it could be threatening your life, it could be threatening the organization's survival, it could be threatening your job. Sales target not being met, or client not being happy, promoter not liking your this thing. Even the CEOs get fired. They just get removed. So there could be any type of crisis. But the point is that you have to, be able to withstand that pressure. And this mental pressure
of deadline, the mental pressure of resources being pulled, and sometimes the things not going to plan. And if you crumble at the first sign of a problem coming up, you will lose the respect and trust of your team. You know, they say a leader cannot show panic on his face. You know, अंदर से आपका चाहे कोई भी हाल हो रहा हो, but then if you show panic on your face or in your behavior or in your voice or in your conduct, your team will just become very weak and the response will be very weak. So जो चीज गड़बड़ हो रही है उसको संभालने के लिए आपको अपना मेंटल टफनेस दिखाना पड़ेगा और अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, ये जो आया है समय, ये समय भी निकलेगा. अभी मैं एक कल सोच रहा था कि जब हम कोई हमारे लाइफ में अच्छा होता है तो हम ऊपर होते हैं, फिर जब हम नीचे आते हैं फिर कोई चीज डाउन हो जाती है, हम माइनस में चले जाते हैं. चाहे पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, ऑर्गेनाइजेशनल इशू है, कैरियर की प्रॉब्लम है, एंड देन फिर जब नीचे चले जाते हैं फिर कुछ अच्छा होता है तो फिर हम ऊपर चल पड़ते हैं. सो ये चीज अगर आप सोचें कि भाई सबसे नीचे भी चले गए तो उसके बाद कहां जाएंगे, उसके बाद तो ऊपर ही आना है. और अगर आप अपने पास्ट में देखते हैं तो जब भी आप कभी डाउन होते हैं तो उसके बाद ऊपर ही उठते हैं. सो इस बारे में आपको कोई परमानेंट चिंता नहीं है कि भाई आपको इसके बाद आपका कैरियर खत्म है और इसके बाद फांसी लग जाएगी और लाइफ खत्म हो जाएगी और सब तितर बितर हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. और ऐसा होता है तो आस्क फॉर हेल्प. जब कभी ऐसी प्रॉब्लम पड़ती है जो आप समझते हो कि भी आपके बस के बाहर है, तो आप हेल्प मांगिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे अभी मेरे बस के बाहर है, और आप उसको बताइए कि भाई अब मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं. नर्वस ब्रेकडाउन कोई प्रशंसा का चीज नहीं है कि जी ये देखो बहुत काम करते थे, बहुत प्रेशर लेते थे, अब बेचारों को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, कोई बात नहीं, वेल डन, शाबाश, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा काम किया तो नर्वस ब्रेकडाउन ले लिया. जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप बताइए कि श्रीमान अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, अब मुझे हेल्प चाहिए, और हेल्प के लिए मांगिए. और हेल्प अगर आप मांगते हैं तो ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है, आपका विश्वास है, आपको अपने ऊपर भरोसा है कि भाई अब मेरे से नहीं हो पा रहा तो मैं क्या करूंगा. मारुति कार के ऊपर में अगर आप 10 टन वजन लाद दोगे तो क्या वो ट्रक कितना ले जाएगी, उसको नहीं ले जाएगी ना. इंजन बर्न आउट हो जाएगा, टायर फट जाएंगे. सो कीप दैट इन माइंड. लेकिन अगर मारुति कार 800 सीसी की है और उसमें 5 आदमी बैठ के वो 300-400 किलोमीटर जा सकती है तो जाना चाहिए ना. तो वो तो आपको करना पड़ेगा. तो उसके लिए पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, आपको टायर में हवा भी डालनी पड़ेगी, आपको कूलेंट भी डालना पड़ेगा, आपको पेट्रोल भी टैंक फुल करना पड़ेगा. सो वो रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए. अभी आप कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपना ध्यान ना दूं और नॉर्मल मैं सब कुछ करता रहूंगा और जब मुसीबत आएगी तो तब देख लेंगे. तो ऐसा नहीं होता है. अगर कोई वेट लिफ्टर है तो वो ऐसा तो है नहीं कि सडनली उठेगा, अपने घर से जाएगा और ओलंपिक गोल्ड मेडल ले आएगा. तो उसके लिए उसको तैयारी करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, कितने सालों से प्रैक्टिस करेगा, डाइट खाएगा, मसल्स बनाएगा, एंड उसके बाद कंपटीशन में हिस्सा लेगा, अपना माइंडसेट उस तरह से बनाएगा, एंड धीरे धीरे करके एक दिन जाकर के वो अपना एम अचीव करता है. सो इसी तरह से एक लीडर को हमेशा से अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखने की जरूरत होती है. अब पॉजिटिव माइंडसेट खाली सपने देखने से नहीं आता है कि आप सपने देख लें, अरे हाँ मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मेरे इतने टारगेट, मेरा वो टारगेट. सो वो करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है. पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब है आप सोचें एंड उसके ऊपर एक्ट करें. वो कहते हैं ना, थिंक बिग, ड्रीम बिग, बट ऑल्सो एक्ट बिग.
जब तक आप मेहनत करके उस रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं करोगे तब तक वो पॉजिटिव माइंडसेट सिर्फ हवा में रहेगा, वो एक बुलबुला सा रहेगा और उसका जो है कोई असर नहीं होता है। हमारी भाषा में बोलते हैं कि थूक से वड़े पकाना, या थूक से आप पकोड़े नहीं बना सकते, बिकॉज थूक तो थोड़ी देर के बाद वो फुस होके अपना खत्म हो जाता है। सो आप ख्याली पुलाव बना करके झूठा पॉजिटिव आउटलुक दिखाने के लिए, जोश दिखाने के लिए अगर कुछ करते हैं लेकिन उसके पीछे मेहनत नहीं है तो वो भी फ्लॉप शो हो जाता है। तो इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, उसको जस्टिफाई भी कीजिए। अब पॉजिटिव माइंडसेट का जस्टिफिकेशन है ना कि थोड़ा थोड़ा आपको रिजल्ट भी मिलता रहेगा, थोड़ा आप मेहनत करेंगे कुछ दिखाई देगा, तो वो पॉजिटिव माइंडसेट रीइंफोर्स होता है। तो आपका खाली पॉजिटिव माइंडसेट होने से टीम पॉजिटिव नहीं होगी। टीम पॉजिटिव तब होगी जब आप उसको रीइंफोर्स करेंगे अपने काम से, रिजल्ट से, और तब जो है वो एक तरह से जब वो पहिया चल पड़ेगा तो फिर आपकी फर्स्ट क्लास तरीके से टीम चलेगी आगे। और दूसरा जो एंड्योरेंस का एक और बेसिक फाउंडेशन है वो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको छोटे छोटे से सेटबैक लगते हैं और उस सेटबैक को आप बहुत बड़ी डिफीट या बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मान लेते हो, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग कि भाई ये सारा अभी तो खत्म हो गया। बट द पॉइंट इज कि अगर आप उसको आप देखो तो आपका लॉन्ग टर्म के ऊपर इसका कितना असर है, और आज से एक महीने के बाद, एक साल के बाद इसका क्या वैल्यू रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट जो है वो ऐसे ऊपर नीचे गिरती रहती है, कई बार गिरती है, साल में 50 बार नीचे गिरती है, लेकिन अल्टीमेटली तो शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है ना। तो कभी वो 1,000 रुपए क्रॉस नहीं किया हुआ था और आजकल वो 80,000 से ऊपर जाने वाली है, अभी ऊपर नीचे चलती रहती है। कुछ दिनों में आप देखोगे 1,00,000 के ऊपर चला जाएगा। तो वो जो शॉर्ट टर्म सेटबैक्स हैं वो आपको अपने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्टिव से, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से आपने उसको अगर आप देखते हो तो आपको जो अपने दिमाग में जो डर है या जो इनसिक्योरिटी है या जो भी कोई खतरा महसूस हो रहा है या डिसअपॉइंटमेंट है या दुख है, उसको दूर करने में हेल्प मिलेगी। तीसरा जो ये है पॉइंट, लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ। अभी आप अपने आप को अगर लापरवाही करेंगे, आप फिजिकल फिटनेस अपनी नहीं रखेंगे, आप अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देंगे, आप अपना डी स्ट्रेस नहीं करेंगे, खाना ठीक तरह से नहीं खाएंगे, लापरवाही करेंगे तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। जब शरीर कमजोर होगा तो बीमारी तुरंत से अटैक करती है, और वो चाहे वो बीमारी आपको नींद ना आए, चाहे आपको थकावट हो जाए, चाहे आपको वीकनेस हो जाए, चाहे आपको ब्लड प्रेशर हो जाए, चाहे कुछ भी किसी भी तरह से आपके ऊपर प्रेशर पड़े, और वो आपकी एफिशिएंसी को कम करता है। तो आप अगर ये सोचेंगे कि मैं एक हफ्ता जो है मैं सिर्फ 4-4 घंटे सो करके मैं पूरा करके अपना निकाल लूंगा, तो अगले हफ्ते में आपको बिल्कुल आंखें नहीं खुलेंगी, दिमाग काम नहीं करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपना रेस्ट, अपना स्लीप, अपनी एंटरटेनमेंट, फैमिली टाइम, वो सारा आप करिए। और उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टास्क को डेलीगेट करना पड़ेगा, अपने एक्सपर्ट जो टीम में हैं उनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, और बाहर से जरूरत पड़ेगी तो मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सब कुछ आप अपने आप करेंगे तो आपका बर्नआउट हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले बताया, बर्नआउट या नर्वस ब्रेकडाउन कोई मेडल देने लायक काम नहीं है। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो आप अपने ऊपर खुद ही लाद लेते हो, और इसका इलाज यही है कि अपना भी ध्यान रखें, डेलीगेट करें, सारा कुछ काम अपने आप करने की कोशिश ना करें। अगला जो इसका फाउंडेशनल एक पिलर है वो है लीडिंग बाय एग्जाम्पल।
ये आपको मैं कई बार बताता हूं और कई एक लीडरशिप ट्रेट्स में ये आता है कि भाई लीड बाय एग्जाम्पल। तो अगर आप लीडर हो और तो आप लीड करते हो, और लीड करते हो तो आप लीड करके दिखाते हो। दैट इज व्हाट इट इज, लीड बाय एग्जाम्पल। तो मतलब यह है कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो एकदम से क्रम्बल नहीं हो जाना है। आप अपना हाव भाव ठीक रखिए, उसके प्लस माइनस पॉइंट्स को आप सोचिए और एक क्लियर पाथ आप बनाइए कि ये जो मुश्किल है या ये जो प्रॉब्लम है इसको कम से कम नुकसान के साथ और जल्दी से जल्दी किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको यू सफर लॉसेस, आपकी रेपुटेशन को, आपके बैंक बैलेंस को, आपकी कंपनी के बिजनेस को, आपकी पर्सनल ग्रोथ को कहीं ना कहीं पर धक्का पहुंचता है। लेकिन उसको आप, उस सिचुएशन को जो आपके साथ हो चुकी है उसको आप वापस तो कर नहीं सकते, आप उसको वापस तो कर नहीं सकते, वो तो हो गया। अनलेस के आप कोर्ट कचहरी में जाइए और बोलिए जी ये इलीगल था, ये था, वो था, एंड वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है चीजों को डील करने के लिए। लेकिन यू हैव टू हैव अ क्लियर लाइन ऑफ एक्शन एंड मेंटेन योर कंपोजर सो दैट आपकी टीम जो है वो आपको आपके ऊपर विश्वास कर सके और जो आप अच्छे से अच्छे सोल्यूशन आप उसमें से निकाल सकते हैं। और यहां पर आई विल ऑल्सो टेल यू वन मोर थिंग, ये जरूरी नहीं है कि सारा का सारा जो लीडरशिप का वजन है आपके सिर पर ही है। जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपकी जो टीम होती है उसमें भी लीडर है ना, एक्सपीरियंस लीडर हैं और पुराने लोग हैं और जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया हुआ है। तो आप उनसे सलाह कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपने नेटवर्क से लीजिए, हेल्प लीजिए, एक्सपर्ट से बात करिए। और हो सकता है इसके लिए आपको थोड़ा बहुत कोई टाइम लगाना पड़ेगा, कोई रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन कोई ना कोई इलाज जो है उसका निकल आता है। सो यो जो है आप इसको अगर ध्यान रखते हैं तो आई एम श्योर विद योर एग्जाम्पल द टीम विल फील स्ट्रेंथन। और अभी जो है आप एक चीज और करेंगे जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी, वो ये है टू लर्न फ्रॉम योर सेटबैक्स। कि जो भी गलतियां होती हैं या जो नुकसान है या जो नेगेटिव चीज है उसको कैसे उससे आपने फायदा उठाना है, कैसे आपने उससे लेसन सीखना है, एंड हाउ यू वांट टू इंश्योर कि ये गलती दोबारा ना हो। सो उसके लिए आपको कोई हो सकता है कि पॉलिसी बनानी पड़े, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको नया बनाना पड़े, या आपको कोई फॉलो अप फीडबैक सिस्टम से इंश्योर करना पड़े कि ऐसे अगली बार से ये गलती ना हो। सो यू हैव टू लर्न। और आप अगर इसका एनालिसिस भी करते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो गई और कैसे इसको हम अलग तरीके से कर सकते थे। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि पैरा कमांडो यूनिट्स में एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि जैसे आप किसी ऑपरेशन से आए और उस ऑपरेशन में कोई मतलब सेटबैक हो गया, कोई गड़बड़ हो गई या नहीं भी हुई, तो उसका जो एनालिसिस है, पोस्ट ऑपरेशनल एनालिसिस टू लर्न लेसन्स के लिए, वो सारी टीम को कई बार मैंने देखा है, कई यूनिट्स में देखा है, वो एक सैंड मॉडल रूम में या कहीं पर कॉन्फ्रेंस रूम में उनको बिठा देंगे और उनको बोलेंगे भाई साहब आप यहां बैठिए, अब आप बात कीजिए कि आपके साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, क्या गलती करी, क्यों हुई, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अगली बार से नहीं होनी चाहिए, उसका क्या तरीका है, और ये सेम ऑपरेशन अगर हमको दोबारा जाना पड़े तो किस तरह से फ्लॉलेस, बिना गलती के 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जाए।
तो आप ये डिस्कस करिए, आपस में अपना निकालिए। जिसको लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, गुस्सा निकालना, किसी को पॉइंट आउट करना, गलती को दिखाना, वो सब आप अंदर करेंगे। भाई साहब कमरे में बंद हैं, आपको चाय पानी खाना सब अंदर मिलेगा, लेकिन बाहर तभी आओगे जब सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी हल हो चुकी है। तो हो सकता है कि उसमें 8 घंटे लग जाएं, 10 घंटे लग जाएं, 12 घंटे लग जाएं। तो ये एक तरह से जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग किसी भी गलती के बाद अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं और फिर सीरियसली उसको फॉलो करते हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए रहेगा। तो आपको एक एंड्योरिंग लीडर होने के लिए, जो लीडर अपना मेंटल और फिजिकल स्टेमिना दिखाता है, अपनी टीम को लीड करता है और एज एन एग्जाम्पल सेट करके उनको दिखाता है, तो वो लीडर जो है हमेशा से एक अच्छा लीडर रहेगा। और उस लीडरशिप के नीचे टीम चाहे कोई भी हो, चाहे वो नई जगह पे जाता है तो वो नई टीम को भी उसी तरह से उसमें करंट पैदा करेगा और उनसे काम करवा लेगा। सो ये जो एक पॉइंट है, ये पॉइंट हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल पर और इवन आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके परिवार में भी ये चीज असर करती है। और इसको आप अपने लाइफ में अगर उतारेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेन अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस एंड प्राइड इन योर सेल्फ। अभी जो सबसे जो मेन चीज होती है कि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि दूसरे लोग जो बोलते रहते हैं उससे हम अफेक्ट हो जाते हैं, और हम दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों से वाहवाही लूटने के लिए, दूसरों से प्रेज लेने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ही हम काम करते रहते हैं। लेकिन हम अपने आप को अच्छा देखने के लिए, अपने आप के अंदर में प्राइड महसूस करने के लिए और अपने आप को एक तरह से कॉन्फिडेंस के साथ में, दमखम के साथ में देखने के लिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि आपको कोई क्या बोल रहा है। अभी जब हम लोग यंग ऑफिसर्स थे तो कई बार यंग ऑफिसर जो अभी कुछ महीने की सर्विस है तो वो बेचारा अपसेट हो जाता है कोई कोई। तो मुझे याद है कि एक बार काफी सालों में कभी मैंने सुना था, तो सम सीनियर ऑफिसर कमेंटेड ऑन समबडी, ही सेज व्हाई आर यू वरीड? If he says something like that, so what? He is not paying your mess bill, isn't it? तो आप अपनी मेहनत करते हो, अपना मेहनत से कमा रहे हो और अपने परिवार की देखभाल कर रहे हो, चाहे किसी भी लेवल पर है, आप किसी के दया के पात्र तो नहीं हो। तो उतना कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो देन यू विल नॉट बी वरीड। एंड इफ यू आर नॉट वरीड तो आपको और ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां मिलेंगी और ज्यादा से ज्यादा लाइफ में आप तरक्की करोगे। और उससे ज्यादा बड़ी बात है कि आपको अपने अंदर संतोष रहेगा कि यस आई एम वर्थ इट, आई एम गिविंग माय बेस्ट, और मेरे को बिल्कुल अपना, मैं जितना मेरा कर्तव्य है मैं पूरी तरह से निभा रहा हूं। और यू विल बी सेटिस्फाइड एंड यू विल बी हैप्पी एंड आपको रात को बड़ी अच्छी नींद आएगी। सो आज का ये इंस्टा लाइव मैं यहीं ख़त्म करता हूं। और इसमें जो है एग्जाम्पल आपको मैं अभी नहीं दे रहा हूं, फिर कभी दोबारा कभी कहानी सुनाऊंगा, अभी काफ़ी लंबा हो गया है। एंड इसके बारे में मुझे कमेंट लिख के दीजिए और सजेशन दीजिए कि क्या आपको और टॉपिक में इंटरेस्ट है या कोई आपकी पर्सनल इशू है, प्लीज उसको मेरे को 1-to-1 बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड जय हिंद।